Hello, dear student. I am Pratibha Bhagat, your course teacher of diseases of field and horticultural crops and their management part 2, and welcome you all for in this lecture session. And today we will discuss about the diseases of lentil. And as we all know that lentil is a very important pulse crop in India, and according to your syllabus we have to discuss about the very most important diseases, that is rust and wilt. First, I will start from the rust. So, rust of lentil is caused by a fungus called Euromyces vicifabi, and it is regarded as the most important foliar diseases of lentil. साथ ही साथ जो रस्ट डिसीज़ है लेंटिल में, ये बहुत ही पोटेंशियल डिसीज़ है जो कि कल्टीवेशन में एक बहुत ही बड़ा थ्रेड है फार्मर्स के लिए, क्योंकि इस डिसीज़ की वजह से काफ़ी इल लॉस होता है और अभी तक इस डिसीज़ के कारण 60 से 70% तक का इल लॉस रिकॉर्ड किया गया है। इस डिसीज़ में फॉलियर पार्ट तो अफेक्ट होता ही होता है, साथ ही साथ आपका पॉट फॉर्मेशन भी अफेक्ट होता है। पॉट फॉर्मेशन अफेक्ट होता है इस कारण कि जो पॉट का साइज़ होता है वो रिड्यूस हो जाता है और उनमें प्रोटीन का जो कंटेंट होता है वो कम हो जाता है। साथ ही साथ इस डिसीज़ को 1978 में बहुत ही सीवियर आउटब्रेक हुआ था मध्य प्रदेश एरिया में, जहाँ पे भी नर्मदा वैली है। नर्मदा वैली में मध्य प्रदेश के यह डिसीज़ को 1978 में सीवियर आउटब्रेक के रूप में रिकॉर्ड किया गया था। अब हम रस्ट के सिम्टम्स से स्टार्ट करते हैं। ये था अभी तक हमने जो इससे पहले देखा, ये था इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। अब हम देखते हैं रस्ट का सिम्टम्स। आप इमेज में देख सकते हैं कि रस्ट का बहुत ही कॉमन सिम्टम है, जिसमें कि रस्ट के पस्टल बनते हैं फोलियर पार्ट्स पे। इन लेंटिल द रस्ट पस्टल कैन बी सीन ऑन द लीफ प्लेट, petiole and stem also. In initial symptom appear as a small oval to round in a shape and light brown in color. Iridospores, that is Iridosauri, appear on the both of the surface of the leaf, and in severe case the sori cover all the part of the maximum area or of leaf. Later stage, the infected leaf become wither and they fall prematurely. So when in this disease, the three major spore are formed, that is pycnospore, axial spore, and iridospore. When pycnial and axial spore start forming in initial stage, the sori looks in yellowish white color. You can see in this whitish part of affected area, that is because of pycnial and axial cups. And later, when disease cause severe damage, and then uridal pustule emerge, and because of when uridal pustule emerge, they looks in brown color. You can see in first image, this is the brown rust symptoms, and this is because of uridal pustule. And when this disease reach in the severe form, then this all the pustule may collapse and form a larger pustule. So this was the symptoms of rust, and next we will discuss about the pathogen. So there are the three images of pathogens. First one is iridospore, the second one, this one is irido, this one is teleospores, and this one is axiospore. So usually Axiospores are spherical and in shape, and their size are lie to 18 to 26 micrometer in diameter. Their walls are hyaline and they are 1 micrometer thick. That is Axiospore. And then we'll go and then iridospore, the iridospore form inside of iridium. So iridia are usually form on petioles and stem, and they are scattered, and and they usually their size are like 0.5 to 1 mm in diameter. And the iridospore are elliptical and ovoidal in shape, and their size
lies between 20 to 28 into 90 to 22 micrometer, and their wall are very thin. Their wall is very thick, and they measures around 1 to 2.5 micrometer. And the pores, and also you can see there's a few pores in this iridospore, and these pores usually in one spore there is 3 to 4 pores are present. So this was the iridospore, and then next second one is third one is teleal. So teleospore form inside of telia. Telia are like iridospore only, but they are black and larger as compared to iridospore. Their size is around 1 to 2 in diameter, but Uridia was 0.5 to 1 micrometer in diameter. And then teleospore are teleospores are ellipsoidal, ovoidal, or cylindrical in shape, and uh, their size uh, their size are 25 to 40 into 18 to 26 meter, and their color is usually in chestnut color. You can see this is the chestnut color, and their wall is very smooth and 1 to 2 micrometer thick at the sides, and above side they are 5 to 12 thick, micrometer thick, and usually their length is around 100 micrometer. This was the telia. And next we will go for the disease cycle. In disease cycle, mostly the primary infection caused by iridospore and teleospore. iridospore and teleospore अल्टरनेट होस्ट लाइक बीन पी स्वीट पी में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, और प्राइमरी इन्फेक्शन यहीं से आता है। जो आपका जो पैथोजन होता है वो अल्टरनेट होस्ट के थ्रू आपके मेन होस्ट में ट्रांसफ़र होता है, और यूरेडिया और टीलियोस्पोर ही आपके मेन होस्ट को इन्फेक्ट करते हैं। देन हम बात करते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन का। सेकेंडरी इन्फेक्शन जो होता है उसका मेन सोर्स होता है एशियोस्पोर, जो कि या तो एयर के थ्रू होता है, और साथ ही साथ जो रस्ट होता है उसका इसके लिए इसका अल्टरनेट होस्ट के थ्रू भी इसमें भी ये ट्रांसफ़र होता है, बट मोस्टली यह सेकेंडरी सोर्स इन्फेक्शन है वह एशियोस्पोर के द्वारा ही होता है। तो ये था डिसीज साइकिल ऑफ रस्ट। एंड देन इसका फेवरेबल कंडीशन हम के बारे में जान लेते हैं। इस डिसीज़ के लिए फेवरेबल कंडीशन जो होता है वो होता है लो टेम्परेचर और साथ ही हाई ह्यूमिडिटी, क्लाउडी और ड्रिजलिंग वेदर, एंड टेम्परेचर मोस्टली इसका 20 टू 22 डिग्री सेल्सियस इस डिसीज़ के डेवलपमेंट को फेवर करता है। मोस्टली ये डिसीज़ जो होती है वो फ्लावरिंग या फिर अर्ली पॉडिंग की स्टेज में ही आपको फील्ड में देखने को मिलेगी। सो ये था इसका फेवरेबल कंडीशन। एंड साथ ही साथ इस डिसीज़ का और एक फेवरेबल कंडीशन ये है कि जितने भी लो लेइंग पैचेस होते हैं फील्ड में आपके, उस एरिया में बहुत ही ज़्यादा इस डिसीज़ को आपको देखने को मिलता है, बिकॉज ऑफ वहाँ पे मॉइस्ट कंडीशन होने की वजह से। सो ये था डिसीज़ साइकिल। डिसीज़ साइकिल के बाद अब हम डिस्कस करते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट में हम फॉलोइंग मेथड्स के थ्रू, प्रैक्टिसेस के थ्रू हम इस डिसीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। इस डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम फॉलियर फंजीसाइड्स का यूज़ कर सकते हैं, और वैराइटीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट वैरायटी यूज़ कर सकते हैं, जो कि डिसीज़ को कंट्रोल करने में बहुत ही हेल्प करता है। जैसे कि ये फील्ड में इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस से भी हो सकता है, क्योंकि अगर फील्ड में प्रीवियस आपका कोई भी अल्टरनेट होस्ट प्रेजेंट हो तो उनके डेब्रिस में, या फिर प्रीवियस हेल्दी लेंटिल फील्ड में अगर हमने फिर से सोइंग कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ये इसके प्लांट डेब्रिस में प्रेजेंट हो सकता है। इसलिए हमें इसके जितने भी इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस हैं उन्हें रिमूव करना होगा फील्ड से। साथ ही साथ इन्फेक्टेड प्लांट को भी हमें फील्ड से रिमूव करना है, क्योंकि इसका सेकेंडरी इन्फेक्शन एयर के थ्रू होता है। तो अगर हमें फील्ड में कोई इन्फेक्टेड प्लांट मिल रहा है तो हमें उसे केयरफुली प्लास्टिक से कवर करके, किसी भी ज़रूरी नहीं कि आप प्लास्टिक का यूज़ करें, आप पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। पेपर के द्वारा, पेपर के कवर के थ्रू हम उसे कवर करके प्लांट को फील्ड से रिमूव करके उसे डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, ताकि वो फील्ड में इन्फेक्शन को
आगे ना फैला सके। साथ ही साथ हम रेसिस्टेंट वैरायटी का यूज़ कर सकते हैं। रेसिस्टेंट वैरायटी के लिए हम पंत L639, पंत L406, पंत L6, पंत L7 एंड पंत L8 वैरायटीज़ का यूज़ कर सकते हैं, जो कि ये सारी वैरायटियाँ पंतनगर से, पंत यूनिवर्सिटी से निकाली गई हैं, जो कि बहुत ही अफेक्टिव हैं इस डिसीज़ के लिए, इस डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए। द नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल कंट्रोल की। केमिकल कंट्रोल में हम ऑक्सीकार्बोक्सिन यानी कि प्लांटा वैक्स @0.2%, बेलेंटॉन @0.05% एंड कैलिक्सिन का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि इस पैथोजन को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही अफेक्टिव पाए गए हैं। तो हम अगर हमें फील्ड में यह डिसीज़ आ चुकी है तो अगर इन 3 केमिकल्स का यूज़ करें तो ये केमिकल बहुत ही फील्ड में अफेक्टिव साबित हो सकते हैं डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए। साथ ही साथ हेक्साफन एंड डाइथिन M45 भी बहुत ही अच्छा कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। तो और हेक्साफर्ब एंड डाइथिन M45 के साथ साथ हम मैनकोजैब का भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी बहुत ही अफेक्टिव पाए गए हैं डिसीज़ के कंट्रोल के लिए। और साथ ही साथ हम फोलियर स्प्रे के रूप में हम बिनोमिल कार्बोक्सिन, मेटालेक्सिल, ऑक्सीकार्बोक्सिन, थिरम, ट्राइडेमेफॉन, इन सब का भी सिंगल यूज़ करके या फिर डाइथिन M45 के साथ कॉम्बिनेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि इस डिसीज़ के कंट्रोल के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो ये था इस लेंटिल का रस्ट। अब हम डिस्कस करते हैं विल्ट के बारे में। अगर आपको कोई भी रस्ट से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो तो हम इसे डाउट सेशन में क्लियर करेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं हम विल्ट। जैसे कि विल्ट का सिम्टम्स हमें पता है कि प्लांट किस तरह से मुरझा जाता है। विल्ट लेंटिल में विल्ट फंगस के कारण होता है, और यह फंगस है आपका फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम एफ स्पीसीज लेंटिस। और यह भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीज़ है, क्योंकि यह भी अगर ये फील्ड में अगर लेंटिल में ये देखने को मिलता है तो इसमें भी आपके जो सीडलिंग्स होते हैं वो पूरी तरह से मर जाते हैं, और जो प्रोडक्शन होता है वो ऑलरेडी रिड्यूस हो जाता है। इस डिसीज़ में भी खासियत है, जैसे कि हर विल्ट में होती है, कि वो पैचेस में आते हैं, तो यह भी पैचेस में आपको सिम्टम्स देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ यह डिसीज़ या पैथोजन वर्ल्ड वाइड भी इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। साथ ही साथ इसे इंडिया में भी, जहाँ जहाँ पे भी लेंटिल का प्रोडक्शन किया जाता है, वहाँ पे ये बहुत ही चैलेंजिंग थ्रेड है हमारे इंडियन फार्मर्स के लिए। इंडिया में इस डिसीज़ को फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया था बंगाल में इन 1934 में। यह डिसीज़ इट इज़ अ सॉइल बॉर्न एंड ऑल्सो रूट पैथोजन। यह मोस्टली एक रूट पैथोजन है जो कि जाइलम फ्लोएम में कॉलोनाइजिंग करता है, और जिसके कारण पूरी तरह से ब्लॉकिंग हो जाती है, और ब्लॉकिंग के कारण ही इसमें विल्ट का सिम्टम्स आता है। जैसे कि मैंने पहले बताया, दिस डिसीज अपीयर्स इन द फील्ड इन पैचेस एट बोथ सीडलिंग एंड अडल्ट स्टेज, मीन्स दिस डिसीज कैन बी कम इन any stage of the plant. Seedling wilt is characterized by sudden drooping followed by drying of leaves and the seedling, that as usual the other common wilt symptoms. And then the root appear, but after the infection also the root appears healthy with reduced proliferation and nodulation, and usually no internal discoloration of the vascular system. Adult wilt symptoms appear from flowering to late pod filling stage and are characterized by sudden drooping of top leaflets of the affected plant, leaflets closure without premature shading, and dull green foliage followed by wilting of the whole plant or individual branches. Seeds from affected plants in mid pod fill to late pod fill are often shriveled. So because of this shriveling problem, protein content also will reduce, and market value will be also affected because of this disease. Next, we can see in this image also, you can see that the symptom, you can see the symptom occurs in a patches.
or because of the wilt symptom, the whole patch is destroyed because of the wilt. So next, we will discuss about the pathogen. Mostly in this disease, microconidia, macroconidia and chlamydospore are born, but macroconidia are very rare. Mostly microconidia seen in this disease. Microconidia are abundant, aseptate and reniform to oval in shape, and also they produce in a short conidiophore, and they range for their size lies between 5 to 12 micrometer into 2 to 3.5 micrometer, and the chlamydospore are profused in culture and are formed singly or in a pairs. So this was the pathogen. In image also you can say this is the microconidia which are produced in a mycelium and in a short conidiophore. Then next we will discuss about the disease cycle. The primary infection may cause by mainly from dormant hyphae and the chlamydospore which is present in soil, and secondary infection caused by conidia and chlamydospore which are disseminated by irrigation water. Means the primary infection जो होता है आपका प्राइमरी इन्फेक्शन वो क्या है, डॉर्मेंट हाइफी और क्लाइमेडोस्पोर के सॉइल में प्रेजेंट होने के कारण होता है, जो कि या तो सॉइल में मोस्टली आपके प्लांट एब्रिस में पाया जाएगा। एंड साथ ही साथ जो आपका सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है वो इरिगेशन वाटर के थ्रू बहुत ही ईजिली स्प्रेड हो जाता है और अदर हेल्दी प्लांट को इन्फेक्ट कर सकता है। देन इसका फेवरेबल कंडीशन, this disease is favored by low soil temperature, 30% soil water holding capacity and increasing plant maturity. So, and the soil temperature of 23 to 27 degrees Celsius is the most favorable for the wilt symptoms. This is the favorable condition for the wilt. And next, management. In management you can do you can use many practices to control or to suppress this disease. So the best method of controlling lentil wilt is to use resistant varieties, a number of which are now available as Pant L4, Pant L6, Pant L8 and also Nuri. साथ ही साथ आप सॉयल अमेंडमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। ऑर्गेनिक मैटर्स के साथ सॉयल अमेंडमेंट्स को मिक्स करके अगर हम फील्ड में अगर अप्लाई करते हैं तो फील्ड में ये एंटागोनिज्म को इन्हांस करेगा, किस जो अदर सॉयल माइक्रोब्स हैं उनका पॉपुलेशन को इंक्रीज करेगा, जिससे एंटागोनिज्म के थ्रू इस डिसीज़ में के प्रोसेस के थ्रू ही इस डिसीज़ को सप्रेस किया जा सकता है। साथ ही साथ हम फील्ड में डीप समर प्लाविंग करनी चाहिए, क्योंकि प्लांट डेब्रिस में यह डिसीज़ प्रेजेंट है, इसके पैथोजन प्रेजेंट है, तो हम प्लांट डेब्रिस को या तो फिर से रिमूव कर सकते हैं या फिर डीप समर प्लाविंग के थ्रू भी इस पैथोजन को इनएक्टिवेट कर सकते हैं। साथ ही साथ डिफरेंट अगर हमें कोई क्रॉप रोटेशन का यूज़ कर सकते हैं सीरियल क्रॉप्स के साथ, जो कि विल्ट, और ऐसे हमें सीरियल क्रॉप्स का यूज़ करना है जो कि जिसमें विल्ट का इन्फेक्शन, जो उसके विल्ट के लिए होस्ट ना हो, विल्ट के होस्ट ना हो, इस पैथोजन के लिए होस्ट ना हो। साथ ही साथ हम फील्ड में एंटागोनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम बैसिलस सबटिलिस या फिर ट्राइकोडर्मा हर्जियनम या फिर ट्राइकोडर्मा विरिडी एट द रेट 4 ग्राम पर केजी ऑफ सीड 4 ग्राम से हम पर केजी ऑफ सीड्स को ट्रीट कर सकते हैं। देन ट्रीट करने के बाद इस सीड को सोइंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये तीनों ही माइक्रोफ्लोरा बहुत ही अच्छे एंटागोनिस्टिक माइक्रोफ्लोरा माने जाते हैं इस डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए। साथ ही साथ हम फील्ड में केमिकल ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, बट हमेशा हमें केमिकल ट्रीटमेंट बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट से पहले करना चाहिए। अगर हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट पहले करते हैं और केमिकल ट्रीटमेंट बाद में करते हैं तो जो हमारे बायो एजेंट है वो भी केमिकल ट्रीटमेंट की वजह से मर सकते हैं। तो यूजुअली हमें या तो बायो केमिकल का यूज़ करना चाहिए या फिर हमें केमिकल्स का फंजीसाइड्स का यूज़ करना चाहिए। तो सीड ट्रीटमेंट के लिए हम फंजीसाइड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। फंजीसाइड्स में हम
बिनोरेल 0.3%, या फिर थायरम प्लस बिनोमाइल 1:1 रेशियो में हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि इस डिसीज़ के इंसिडेंस को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ ग्रेन के इल्ड को इंक्रीज़ करता है। तो इस तरह से हम डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करके फील्ड से डिसीज़ को सप्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये था आपका डिसीजेस ऑफ लेंटिल। नेक्स्ट क्लास में हम डिसीजेस ऑफ कॉटन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट, एंड स्टे सेफ।